নমস্কাৰ, আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ আজি খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানলৈ। কিছু সময়ৰ পিছতেই অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় ৰাজ্যপালগৰাকী আহি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছে। আমি আপোনালোকক সকলোকে DD অসমৰ তৰফৰ পৰা ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই গণৰাজ্য দিৱসেই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আমি আপোনালোকক গৌৰৱৰ সৈতে আজি এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সপত্নীক আহি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছে আৰু ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত আজিৰ অনুষ্ঠানত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটো মহীয়ান কৰি তুলিছে। কিছু সময়ৰ পিছতেই অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে DD অসমৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে সন্মানীয় অতিথিসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। কিছু সময়ৰ পিছত নীলিম আকাশত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন হ'ব। ৭৩ বছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় সংবিধান ভাৰতবাসীৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষই আজিৰ দিনটোতেই বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰৰ এই সংবিধানখন নিজেই নিজকে অৰ্পণ কৰিছিলে। আমি আজিৰ এই মহান দিনটোত গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। তেখেতে আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালজনক আদৰণি জনাবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবাঢ়ি গৈছে। আজিৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল দিনটোত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নীলিম আকাশত উত্তোলন কৰিব অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে। ৰাজ্যপালগৰাকী ইতিমধ্যে আহি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক আদৰণি জনাবৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবাঢ়ি গৈছে। ইতিমধ্যে অতিথিসকল আহি নিজৰ আসনত উপবিষ্ট হৈছে। আমি আপোনালোক সকলোকে DD অসমৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কিছু সময়ৰ পিছতেই অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতক আদৰণি জনাইছে, আদৰি লৈ আহিছে। সকলোৱে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলি নিয়ম নীতিৰ মাজেদি পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।
गणतंत्र दिवस परेड समारोह आपके निरीक्षण के लिए अपनी ईयर पर फिक्स हुई नहीं स्टैंड हमारा बैक साइड उठा लो Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, will be inspecting the parade on the ground. He has just started his way. Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukherjee, is inspecting the parade here. ৰাজ্যপাল মাননীয় অধ্যাপক ডক্টৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াই এতিয়া খেলপথাৰত উপস্থিত সকলোকে অভিবাদন জনোৱাৰ লগতে পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয় ठपके वही ठपके उठिले कैमेरा हिली जाए हेलो सबाय Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukherjee, is greeting the people on the occasion of 73rd Republic Day of our nation. After a few moments from now,
Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukherjee, will unfurl the national flag on the occasion of Republic Day of India celebration. কিছু সময় পাছতে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক ডক্টৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াই ৭৩তম গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। Russia salute! Salami! Shot! মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক ডক্টৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াই সমবেত সকলোকে উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব। May I now take the honor to request Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukherjee, to present his speech on the occasion of 73rd Republic Day celebration here in Veterinary Ground, Guwahati.
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे महान राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्य और देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम संविधान प्रणेताओं के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता और भावभीनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस महान गणतंत्र को एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को सुनिश्चित करता है, साथ ही लोगों की आकांक्षाओं एवं आदर्शों को दर्शाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्षम बनाता है। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदानों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। साथ ही मैं अपने राष्ट्र के वीर जवानों, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस कर्मियों के प्रति सर्वोच्च सम्मान के साथ नमन करता हूं और देश की सीमा पर संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे असम वासियों, बीता हुआ वर्ष हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना महामारी ने हमारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ली। हमारे कई निकट और प्रियजनों ने इस महामारी में अपनी जानें गंवाई। इस दौरान जो लोग हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, मैं उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। समग्र विश्व जब इस महामारी से जूझ रहा था, तब इस अदृश्य बला के खिलाफ आगे आकर नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता मिलना हम सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा हमारे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की पूर्ण निष्ठा, असमवादियों के समर्थन और सहयोग से हम इस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपका यह सोच, सहयोग एवं समर्थन हमें इस चुनौतीपूर्ण दौर से सफलतापूर्वक उबरने में मदद करेगा। असम वासियों के असीम प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के बल पर निष्पक्ष, प्रभावी, पारदर्शी और जिम्मेदार सुशासन प्रणाली लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार अथक प्रयास कर रही है। किसी भी तरह के अपराधों के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई और शांति के पथ प्रदर्शक पहलों के आज परिणाम मिलने लगे हैं। इसी तरह वार्ता के माध्यम से असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्य सीमा के मतभेदों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उठाया गया कदम हमारे सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर असम सरकार ने गरीब, दलित, किसान और श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मिशन वसुंधरा के माध्यम से स्वदेशी लोगों की भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई पहल, परियोजना सद्भावना के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए उठाए गए कदम, हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा संकल्पित अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करना आदि सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 4 सितंबर 2021 को कार्बी गुट के 4 संगठन KPLT, KLNLF, PDCK और UPLA ने असम सरकार और भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुछ अन्य उग्रवादी संगठनों ने जैसे NSLA, ADF, NLFD, UPRFP
ने भी असम सरकार के सामने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया है। 24 सितंबर 2021 और 13 नवंबर 2021 को डीएनएलए के अध्यक्ष, सीएनसी, डिप्टी सीएनसी एवं जीएस ने 45 अन्य कैडरों के साथ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। 28 अक्टूबर 2021 को डीएनएलए ने असम सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और ये संगठन औपचारिक रूप से शस्त्र समर्पण समारोह की प्रतीक्षा कर रहा है। इस अवधि के दौरान उल्फा इंडिपेंडेंट के पश्चिमी कमान के प्रभारी सहित 14 कट्टर उग्रवादी, 7 डीएनएलए और 1 एनएलएफबी, 2 यूएलबी और 3 यूपीआरएफ उग्रवादी सिक्योरिटी फोर्स के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। 2 नवगठित बोडो उग्रवादी समूह अर्थात एनएलएफबी और यूएलबी को भी निष्प्रभावी कर दिया गया है, क्योंकि इन समूहों के सभी कैडर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राज्य सरकार राज्य के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम माला कार्यक्रम के तहत राज्य के राजमार्गों और जिले की प्रमुख सड़कों को सुधारा और चौड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। 28,000 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद हमारी सरकार 31 मार्च 2022 तक नई कनेक्टिविटी के सभी पीएमजीएसवाई 1 और पीएमजीएसवाई 2 के कार्यों को पूरा करने जा रही है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई 3 के तहत स्वीकृत 2760 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य में से 941 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है और शेर 1819 किलोमीटर प्रगति पर है। इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर 2608 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य प्रस्ताव शामिल है। भाई और बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है। गोलाघाट और धेमाजी में इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो चुके हैं और सुवालकुची, बिहाली, बंगाईगांव, चामुगुरी, नलबाड़ी और उदालगुड़ी में 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और माजुली और टिंगखोंग में पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा 6 सरकारी मॉडल कॉलेजों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है और असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 9 महिला डिग्री कॉलेजों का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। चाय बागान क्षेत्र में 119 हाई स्कूलों का निर्माण शुरू किया गया है। साथ ही असम के विभिन्न स्थानों पर 10 विधि महाविद्यालय और असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 21 आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण प्रगति पर है। मित्रों, सांस्कृतिक उत्थान के लिए मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है। नारायणपुर में श्री श्री माधव देव कला क्षेत्र का निर्माण कार्य, भद्रवाह नगांव में सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में भद्रवाह थान का विकास, शहीद पार्क के उन्नयन के साथ साथ ढेकियाजुली में एक कन्वेंशन हॉल और जामुगिरी हाट में बारेचरिया भावना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा गुवाहाटी में बड़ा गांव में एक शहीद स्मारक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। खेल क्षेत्र में डिब्रूगढ़, लखीमपुर और सवालकुची में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है और असम में 40 मिनी स्टेडियम और 10 जिला स्टेडियम के निर्माण के लिए भी योजना प्रस्तुत की जा रही है। मेरे प्यारे असम वासियों, मनरेगा भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे पीएनडी-आरडी विभाग के तहत लागू किया जा रहा है। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 2013 रुपए से बढ़ाकर 2024 रुपए कर दी गई है। मनरेगा के तहत सामान्य भूमि के साथ साथ व्यक्तिगत भूमि में बड़े पैमाने पर
चंदन, आगर और सोम पौधे लगाने और शैक्षिक, धार्मिक और सामुदायिक संस्थान भूमि में मत्स्य पालन की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी के लिए आवास प्रदान करना है। योजना के तहत 7,68,600 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 7,35,792 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 4,52,064 आवासों का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है। कच्चे घर की संशोधित परिभाषा के अनुसार अन्य 7 लाख लाभार्थियों का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है। असम सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कनकलता सबलीकरण योजना के तहत 2.54 लाख स्वयं सहायता समूहों को कुल 397 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। विस्तारित कनकलता सबलीकरण योजना के तहत 86,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत अक्टूबर 2021 तक कुल 53,321 ग्रामीण गरीब युवकों को ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ, औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न संगठनों में कुल 29,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत अक्टूबर 2021 तक 1,08,192 युवकों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया है। असम में 63,35,015 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 17,25,911 यानी 27.24% ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 22,62,735 परिवारों को पानी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 26,354 स्कूलों, 11,194 आंगनवाड़ी केंद्रों और 605 ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों और ग्रामीण असम से संबंधित अन्य सरकारी भवनों में रनिंग वाटर की सुविधा प्रदान की गई है। असम सरकार ने किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन सम्मान व मान्यता प्रदान करते हुए विशिष्ट व्यक्तियों को असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव के नाम से असम के सर्वोच्च राज्यिक नागरिक पुरस्कारों का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2021 के ये सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार कुल 29 विशिष्ट नागरिकों को दिनांक 24 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए हैं। आपको बता दूं, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी 2002 को उनके जीवित माता पिता और सास ससुर के साथ बिताने के लिए सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति प्रदान की गई है। मेरे प्यारे मित्रों, राज्य सरकार द्वारा निरंतर दिए गए जोर के कारण कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। दलहन और खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि की यंत्रीकरण प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए लाभार्थियों को 7,293 पावर टिलर, 2,300 पंप सेट, 100 धान काटने की मशीनें, 961 रीपर मशीनें, 1459 पल्वराइजर और 1213 रोटावेटर का वितरण किया गया। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बागवानी मिशन योजना के तहत
स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट्स, रामबूटन, विदेशी अमरूद, अदरक, हल्दी, हाइब्रिड सब्जियां और फूलों की खेती जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का व्यापक क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षित युवाओं के बीच उद्यमिता विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन और सटीकता से खेती करने पर जोर दिया गया है। असम समझौते के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद वर्तमान सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गुवाहाटी के पश्चिमी बोरा गांव में शहीद स्मारक और पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है और फ्रंट ऑफिस और प्रवेश ब्लॉक का काम अब तक पूरा हो चुका है। असम बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम 98.35% पूरा हो चुका है। असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10 दिसंबर 2021 को शहीद दिवस के दिन असम आंदोलन पर डेटा बुक का दूसरा और तीसरा खंड लॉन्च किया गया है। एक अनुपूरक खंड चौथा और पांचवा खंड भी पूरा कर लिए गए हैं और मुद्रण के लिए तैयार है। असम आंदोलन के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रभावी पुनर्वास के लिए असम समझौता कार्यान्वयन विभाग ने असम आंदोलन पीड़ित कल्याण ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट को 10 दिसंबर 2021 शहीद दिवस पर असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है। असम समझौते की धारा 6, 7, 9 और 10 पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए असम समझौते की सभी धाराओं पर कार्यान्वयन करने के लिए तथा इसकी रूपरेखा की जांच करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। मृदा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की प्राथमिकता विकास निधि के तहत 4021.26 लाख रुपए की वित्तीय भागीदारी के साथ विभिन्न मृदा नमी और जल संरक्षण उपायों को अपनाकर लगभग 22,340 हेक्टेयर वर्षा सिंचित कृषि भूमि विकसित करने को प्राथमिकता दी है। तदनुसार कार्यक्रम के तहत विभाग ने आज की तारीख तक 207.97 लाख रुपए की वित्तीय उपलब्धि के साथ लगभग 1155 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि विकसित की है। वर्ष 2021-22 में स्वायत्त परिषदों मिसिंग स्वायत्त परिषद, राबा हसोंग स्वायत्त परिषद, टीवा स्वायत्त परिषद, सोनेवाल कछारी स्वायत्त परिषद, थिंगाल कछारी स्वायत्त परिषद, देवी स्वायत्त परिषद, कोच राजवंशी समुदाय के लिए कामतापुर स्वायत्त परिषद, मोरान स्वायत्त परिषद और मटक स्वायत्त परिषद, बीटीडी के बाहर बोडो कछारी कल्याण परिषद के लिए सर्वांगीण विकास के लिए 260.6 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने तामुलपुर उपमंडल को अब नया जिला बनाने का निर्णय लिया है। ये राज्य का 35वां और बीटीआर का 5वां जिला होगा। मेरे प्यारे असम वासियों, परिवहन विभाग हमेशा राज्य के राजकोष में पर्याप्त मात्रा में राजस्व का योगदान देता रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 30 नवंबर 2021 तक एमबी राजस्व के रूप में 525.19 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि की तुलना में 38.36% अधिक है। विभाग ने 3 संपर्क रहित आधार आधारित ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की हैं, जैसे लर्नर लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। विभाग ने 24 ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहन और 21 हैंडहेल्ड स्पीड गन खरीदे हैं और इन्हें समग्र राज्य में ओवर स्पीडिंग के मामलों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान आंतरिक जल परिवहन ने राज्य के विभिन्न नौका सेवाओं में अलग अलग क्षमताओं वाले 10 नए
यात्री जहाजों को शुरू किया है। एमट्रॉन के माध्यम से माजुली और गुवाहाटी में स्थित फेरी सेवाओं में वेब आधारित ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई है और मैनुअल टिकटिंग प्रणाली बंद कर दी गई है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाले असम राज्य परिवहन निगम नागरिकों को प्रभावी और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम राज्य परिवहन निगम ऑयल इंडिया लिमिटेड को आवश्यक सीएनजी बसें उपलब्ध कराने की परियोजना तथा सीएनजी स्टेशनों की स्थापना आदि पर काम कर रहा है। स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार तेजपुर में विद्युत चलित वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे सोनितपुर और विश्वनाथ चरियाली जिला में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिदृश्य को गति मिलेगी। इसके अलावा गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एएसटीसी को 200 इलेक्ट्रिक बसें और 100 सीएनजी बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि राजस्व बंटवारे के आधार पर गुवाहाटी में चलने वाली मौजूदा डीजल बसों को बदला जा सके। असम राज्य परिवहन निगम ने गुवाहाटी के खानापारा में आईएसबीटी के निर्माण, तेजपुर में आईएसबीटी के निर्माण, माजुली में स्टेशन भवन के विकास जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राज्य में इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए असम इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को अधिसूचित कर दिया है। वन विभाग राज्य के वन, वन्य जीव और जैव विविधता के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वन और वन्य जीवों की बेहतर सुरक्षा के लिए मेरी सरकार ने हाल ही में 2 राष्ट्रीय उद्यानों को अधिसूचित किया है। कोकराझार जिले में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 422 वर्ग किलोमीटर है, और तिनसुकिया जिले में दींग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसके क्षेत्रफल को 111.19 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 234.26 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण करने में सफल साबित हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान को भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ ग्लोबल टाइगर फोरम से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, क्योंकि यहां 2010 की तुलना में बाघों की आबादी 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। वन्य जीवों की रक्षा करने वाले समर्पित फील्ड स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार 2000 रुपए प्रति माह राशन भत्ता और 1 महीने का वार्षिक विशेषाधिकार अवकाश स्वीकृत कर रही है। शिकारियों को एक कड़ा संदेश देने के लिए अब तक असम कोषागार में जमा किए गए 2479 गैंडों के सींगों को 22 सितंबर 2021 विश्व राइनो दिवस पर आग लगाकर नष्ट कर दिया गया है। असम सरकार ने एसडीजीपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है ताकि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सके और सभी उम्र में लोगों के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य में लखीमपुर में नया शुरू किया गया लखीमपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 3 डेंटल कॉलेज, 3 बीएससी नर्सिंग कॉलेज, 3 फार्मेसी संस्थान और 6 पैरामेडिकल संस्थानों सहित 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। धुबड़ी, नगांव, कोकराझार, नलबाड़ी और तिनसुकिया में और 5 नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। सभी 5 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूर्ण गति से चल रहा है। इसके अलावा विश्वनाथ और चराईदेव मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही मोरीगांव, धेमाजी, गोलाघाट, बोंगई गांव, गुवाहाटी और तामुलपुर में 6 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा बजट सत्र में की गई है। तामुलपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पहले ही रखी जा चुकी है।
स्वास्थ्य संस्थानों के निदान सेवाओं के न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क निदान कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्थापना के बाद 30 नवंबर 2021 तक मुख्यमंत्री निशुल्क निदान सेवाओं के तहत 7,21,457 मरीज मुफ्त सीटी स्कैन सेवाओं से लाभान्वित हुए। 18,50,022 मरीज निशुल्क एक्सरे सेवाओं से लाभान्वित हुए और 43,30,208 मरीजों को मुफ्त प्रयोगशाला सेवाओं का लाभ मिला। असम सरकार सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध करा रही है। हेमोडायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए 209 हेमोडायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। 29 दिसंबर 2021 तक 1,83,061 निःशुल्क डायलिसिस सत्र आयोजित किए गए हैं। दुधनोई और ग्वालपाड़ा में एकीकृत आयुष अस्पताल पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन असम के तहत माजुली में चल रहा अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 49 आयुष अस्पताल एवं आरोग्य केंद्र शुरू किए गए हैं। अन्य 40 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए स्वीकृति प्रदान हुई है। राज्य में अनुमानित 2.31 करोड़ पात्र लोगों को 21 दिसंबर 2021 के दोपहर 12 बजे तक टीका लगाया गया है। 2.16 करोड़ लोगों ने टीका की पहली डोज और 1.46 करोड़ लोगों ने दूसरी डोज ली है। राज्य में अब तक कुल 3.62 करोड़ टीका किए गए हैं। मेरी सरकार के फोकस क्षेत्रों में से एक है बुनियादी शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा के विस्तार और उपलब्धता के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। असम सरकार राज्य के कोने कोने में मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 20 अगस्त 2021 को अनुकंपा के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में कुल 600 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के 313 पद, अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के 127 पद, ग्रेड 2 के 10 पद और ग्रेड 4 के 160 पद हैं। असम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम 1959 के तहत शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अब तक 40 मास्टर प्लान का फाइनल और ड्राफ्ट दोनों तैयार हैं। 45 मास्टर प्लान और तैयार किए जा रहे हैं। इसमें से 23 मास्टर प्लान को GIS आधारित तकनीक का उपयोग करके पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में सभी के लिए आवास के अंतर्गत भारत सरकार से अब तक 98,833 घरों के लिए निधि प्राप्त हुई है। 98,833 स्वीकृत घरों में से 83,003 घरों को वर्तमान में निधि की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। इसलिए कुल ग्राउंडेड घरों में से 49,990 घर वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन हैं। 33,013 घर अब तक पूरे हो चुके हैं। सिंचाई विभाग ने विभिन्न प्रमुख मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से मार्च 2021 तक 10.41 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बनाई है। तदनुसार 76,926 हेक्टेयर की क्षमता के साथ 6 नई बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों को 4506.88 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ लिया गया है। सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर नागरिकों के लिए एक आसान ऑनलाइन मंच प्रदान करके भूमि अभिलेखों के अपडेशन में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से मिशन वसुंधरा लॉन्च किया है। वित्त विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए
असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 57,274.32 लाख रुपए की राशि का संचार किया है। इस कोष में 39,515.4 लाख रुपए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के लिए और 17,759.28 लाख रुपए नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के लिए आवंटित किए गए हैं। मेरे प्यारे राज्यवासियों, वर्तमान सरकार ने चाय जनजाति समुदाय के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया है। चाय जनजाति समुदाय के बीच शिक्षा परिदृश्य को सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति जारी कर रही है। ये वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम पर निर्भर है, जो 3,000 रुपए से लेकर अधिकतम 35,000 रुपए तक है। असम सरकार का समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर लोगों के समग्र विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य की 230 ICDS परियोजनाओं में 32,13,018 बच्चे और 5,93,758 गर्भवती महिलाओं और 61,715 स्तनपान कराने वाली माताओं को SNP और अन्य सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण सह पुनर्वास केंद्र, कामकाजी महिला छात्रावास, उज्ज्वला, स्वाधार गृह, राज्य महिला आयोग, महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र आदि। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मीडिया कर्मियों के साथ साथ आम जनता के कल्याण के लिए भी राज्य में कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। यह विभाग सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से असम के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की चिकित्सा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी योजना अर्थात पत्रकार चिकित्सा कल्याण योजना लागू कर रहा है। इस योजना में पत्रकार के परिवार के आश्रित सदस्य भी शामिल हैं। 2021-22 के दौरान नवंबर 2021 तक 32 पत्रकारों को 10.9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पत्रकारों के कल्याण के लिए पेंशन योजना की घोषणा की गई है, ताकि असम में 20 से अधिक वर्षों से काम कर रहे पत्रकारों को उनकी सेवा निवृत्ति पर पेंशन का लाभ प्रदान किया जा सके। पत्रकारों के लिए असम पेंशन योजना के तहत 2021-22 के दौरान 20 पत्रकारों को पेंशन प्रदान की गई। गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर एक प्रतिष्ठित पत्रकार को प्रदान किया जाता है। 2021 तक 5 प्रतिष्ठित पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार में 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र शामिल हैं। इस वर्ष भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रिय बंधुओं, खेल और क्रीड़ा को सभी ने व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छे साधन के रूप में मान्यता दी है। विभिन्न राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रीय मंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं में से प्रत्येक खिलाड़ी को चालू वित्तीय वर्ष से उनकी 10,000 रुपए प्रति माह खेल पेंशन प्रदान करेगा। इस योजना में पदक विजेताओं को निम्न प्रकार सम्मानित किया जा रहा है। वह पदक विजेता जो सेवा में नहीं है, उसे नियमित खेल पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पदक विजेता जो सेवा में है,
उसे 50,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय अनुदान राशि से सम्मानित किया जाएगा। असम सरकार ने खेल रत्न लवलीना बोरगोहाई को असम पुलिस का पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। श्रीमती जमुना बोरो बॉक्सर तीरंदाज संजय बोरो को आबकारी विभाग ने उत्पादन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 12 अगस्त 2021 को श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में खेल रत्न लवलीना बोरगोहाइन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को एक मुश्त अनुदान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। लवलीना बोरगोहाई के 5 प्रशिक्षकों में से प्रत्येक को 10 लाख का पुरस्कार दिया गया है। असम सरकार ने नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 40 विधानसभा क्षेत्रों में 12 करोड़ प्रत्येक स्टेडियम के हिसाब से 40 मिनी स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। वहीं राज्य के 10 जिलों में 50 करोड़ रुपए प्रति स्टेडियम के हिसाब से 10 जिला स्टेडियम का निर्माण और उन्हें प्रशिक्षण और नियमित अभ्यास के लिए उच्च सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मित्रों, सांस्कृतिक मामलों का विभाग सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों को प्रदान करके असम के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित करता है। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार यानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रख्यात लेखक और विद्वान डॉक्टर निरोध कुमार बरुआ को 3 अक्टूबर 2021 को श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। एपीडीसीएल ने असम के सभी राजस्व गांवों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत ऐसे गांवों के सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन भी प्रदान कर दिए हैं। एडीपीसीएल में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में चयनित स्थानों में उपभोक्ताओं के परिसर में 1.75 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और एपीडीसीएल 2025 तक सभी 64 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के तहत लाने की प्रक्रिया का विस्तार कर रहा है। मित्रों, हम सभी असमवासी के लिए अत्यंत आनंद का विषय है कि केंद्र सरकार ने विशिष्ट समाज सेविका श्रीमती शकुंतला चौधरी जी एवं विशिष्ट साहित्यकार श्री धनेश्वर इंगती जी को राष्ट्रीय नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आज इस शुभ अवसर पर मैं राज्य सरकार एवं राज्यवासियों की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही पुरस्कार के लिए चयनित दोनों महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे असमवासियों, हम आज पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा। विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान होगा। भारत में असम की अलग पहचान होगी। यह समय है जब हम सभी असमवासी एकजुट होकर सभी चुनौतियों को झेलेंगे, बाधाओं को पार करेंगे और अपने राज्य के समग्र विकास के लिए पूरे संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने आप को झोंक देंगे। कल का सूरज हम अपने कंधों पर उठाकर लाएंगे, जिसका प्रकाश हर गहरी से गहरी कालिमा और घने से घने कुहासे को मिटा देगा। मैं एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
Officers! Copy! Ahead! Here it comes. Deputy Superintendent of Police, Mamlal Raj Purohit as parade commander. श्रीमान, परेड को मन से गुजारने की आज्ञा का पालन करें। Now, Honorable Governor of Assam will take salute from parade contingents present here. दाहिने मन से गुजरेगा। एक मिनट में जो आगे। दाहिने चलेगा। হ'ব এইখিনিতে থাকাচোন হ'ব পাবা চব হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিম ফ্ৰী হৈ গ'ল হ'ব থাকে আমিতো ইয়াত ল'ব লাগিব আমাৰ আকৌ যাব ক'ত নহয় না Here it comes. Virangana personnel led by একদম মিলি যায় WSI Yobi Anushree Kalida. मैं अकबर से वीरांगना दौर And now, CRPF personnel platoon number 2, led by Dharmendra Gautam SIG. সংরক্ষিত আরক্ষী বাহিনীর নেতৃত্ব ধর্মেন্দ্র প্রথম Led by APSI Vijay Kumar Bora. সম্পূর্ণ নেতৃত্ব দিচ্ছে এপিএসআর বিজয় কুমার বড় Now, person number 4, and
71তম গণৰাজ্য দিৱসৰ পুৰস্কাৰৰ সামৰণি কৰিছে। Members of the announcement. The Pharmacy Award for Excellence in Public Administration for the year 2019 includes categories of Innovative Center of Efficient and Advancement আৰু টেনশ্যন নাই আৰু Programs আৰু নাই and Government Initiative has been awarded গভৰ্ণৰ ওচৰত পোৱা নাই বা মই কিয় হৈ আছে অফিচত Now we announce the name of awardees. In the innovation category, the award goes to Srimati Kirti Jolly, the then Deputy Commissioner Hailakandi, along with her team, Sri Jyotirmoy Dermani, ACS District Social Welfare Officer Hailakandi, and Sri Rajat Chakravarti, District Coordinator Poshan Abhiyan Hailakandi. They got the award for Amla Gur Candy to reduce anemia level throughout the Hailakandi in Anemia Mukt Hailakandi. Dr. Ambika Deka, Manager, District Poultry Farm, Japalkusi Nalbari, Assam. The award he got for the socio-economic development through poultry farming. The award goes to Srimati Barnali Deka, the then Deputy Commissioner Gwalpara, along with her team member Srimati Ashramani Malakar, ACS DDC Gwalpara, and Sri Nutan Das, Inspector of Education Gwalpara, for the project Vidya Shakti Female Literacy Enhancement Program. And the award goes to Sri Bidupon Naik, the then ADC in charge Koliabar Subdivision, along with his team, TC Rajneet Ram, IFS, DFO Nagaon Wildlife Division, Ramesh Kumar Gogoi, AFS DFO Eastern Assam Wildlife Division, Bokakhat, for the project Development of Ecotourism by Utilizing Heritage and Natural and Human Resources in Koliabar Subdivision. In the e-governance category, the award goes to Sri Rakesh Kumar, the MD APDCL Commissioner and Secretary, Fishery Department, for the e-governance system in Excise Department of Assam. আজি আমি অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক ডক্টৰ জগদীশ মুখী, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰমুখ্যে উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তি, সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকল, প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ যিসকল সদস্য ইয়াত ভাগ ল'লে আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আহক আই ভাৰতীৰ আই অসমীৰ উত্তৰ কামনা কৰি আজি গণৰাজ্য দিৱসত আমি পণ লওঁ। আমি এটা সপোন দেখো, সূৰ্যমুখী ফুলৰ সপোন আৰু গাঁও। হয়তো সপোন সামফল হ'ব, মায়াৰ কুঁৱলী যাব, সপোনত যাক বিচাৰি ফুৰিছে দিঠকত দেখা পাব। লোভী সপোনৰ গুপুত মৰ্ম, সপোন দেখাতে সিজিব কৰ্ম, বিন বৰাগী জীৱন সিহঁত বিনৰ প্ৰান্তি পাব। হয়তো সপোন সামফল হ'ব, মায়াৰ কুঁৱলী যাব। असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का गरिमामय उपस्थिति एवं भाषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। We thank Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, along with all the dignitaries present here. We thank all the media persons, and at the end of this program, we thank each and every one present here. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your support and cooperation. সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পিছতে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি ফাললৈ এতিয়া আগবাঢ়িছে। ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ DD অসমৰ সমূহ দৰ্শকক আজিৰ অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ আজি খানাপাৰাস্থিত গুৱাহাটীৰ অসম ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মাননীয় ৰাজ্যপাল
অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বহু পদক্ষেপৰ বিষয়ে তেখেতে জনালে কিদৰে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিছে উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা আজি ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰিলে আৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সপত্নীক উপস্থিত আছিলে আৰু বিশিষ্ট অতিথিসকল উপস্থিত আছিলে। আমি DD অসমৰ সমূহ দৰ্শকক আজিৰ এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।